अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। कल पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ही अहम दिन, सियासी तारीख के हवाले से बात की जाए या दिफाई हवाले से बात की जाए, दोनों लिहाज से ये दिन बहुत ही अहम था। अगर सियासी महाज पर बात करें तो कल पार्लियामेंट लॉजिस का जो वाकया हुआ उसने पाकिस्तान के सियासी वादे को एक और निशान करके दागदार किया। और कल जो कुछ हुआ इसके बाद ये जरूर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सियासत में अदम एतमाद के साथ साथ अब अदम बर्दाश्त भी जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। कल पार्लियामेंट लॉजिस के वाकये ने पाकिस्तान के दारुल खिलाफा यानी कि इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ उसके लिए भी बड़े सारे सवालियात निशान तो जरूर खड़े किए। दूसरी जानब पाकिस्तान में कल एक और वाकया हुआ, वो था पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को चेक करने का वाकया। कल पाकिस्तान के DGISPR जनाब मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी बातें की गई, वो क्या थी आइए आपको सुनाते हैं। Explain to you about the incident that we are talking about, and after that, if there are any questions, we'll be taking them on. On 9th of March 2022, at 18:43 hours, that is 6:43 p.m., a high-speed flying object was picked up inside Indian territory by Air Defence Operations Center of Pakistan Air Force. From its initial course, the object suddenly maneuvered towards Pakistani territory and violated Pakistan's airspace, ultimately falling near Mia Channu at 18:50 hours, that is 6:50 p.m. And when it fell, it also damaged some civilian property. Thankfully, no loss or injury to human life was caused. Pakistan Air Force continuously monitored the complete flight path of the flying object from its point of origin near Sirsa in India till its point of impact near Mia Channu. And Pakistan Air Force initiated requisite tactical actions in accordance with the SOPs. It is important to highlight that flight path of this object endangered many international and domestic passenger flights both in Indian and Pakistani airspace, as well as human life and property on ground. Whatever caused this incident to happen, it is for the Indians to explain. It nevertheless shows their disregard for aviation safety and reflects very poorly on their technological prowess and procedural efficiency. The incident could have resulted in a major aviation disaster as well as civilian casualties on ground. Pakistan strongly protests this flagrant violation and cautions against recurrence of any such incident in future. Now, I would like to call upon Air Vice Marshal Tariq Zia to explain the technical details of the incident. Sir. Thank you, General Babar. Thank you. Assalamualaikum, gentlemen. I'll go over the details of the incident which happened yesterday. During our routine surveillance yesterday on the 9th of March at 18:43 hours, we picked up high-speed object close to Sirsa. The initial pickup was 104 kilometers inside the Indian territory from the closest part of the international border. This object was picked up at high altitude, which was around 40,000 feet, and it was traveling at speed in excess of Mach 2.5 and ultimately ending up at Mach 3. The initial course of this projectile was on southwesterly heading, and it appeared to initially go towards the Mahajan field firing ranges, which is southwest of Suratgarh at this place. However,
Once it had traveled around 70 to 80 kilometers on this heading, it took a right track change while maintaining the same altitude and speeds and started to head northwest towards the Pakistani airspace. Pakistan Air Force air defense system had a solid and continuous tracking of this projectile right from its first pickup till it faded out, and I'll talk about it a little later. So on a northwesterly heading, this track crossed the international border into Pakistan, crossed over close to Harunabad, south of Bahawalpur, on the same parameters, and ultimately it faded out at a time of 1850 Pakistan Standard Time, close to Mia Channu. Total distance that it traveled inside Pakistan was 124 kilometers. Total time from pickup till its impact on the ground was 6 minutes and 46 seconds. However, the time that it stayed in Pakistani territory was 3 minutes and 44 seconds. While we have recovered the debris and we are continuously doing the forensic analysis of this object, we can so far deduce that it was a supersonic missile, an unarmed missile, and it was launched from the ground. So it was a surface-to-surface missile. Details are yet to come, and we will ascertain the type subsequently. Thank you very much. जैसा मैंने अपनी स्टेटमेंट में आपको बताया कि whatever caused this incident, it is for India to explain. Being a responsible nation, हम इसके ऊपर कोई किसी किस्म की इश्ताल अंगेज़ी या कोई इस तरह की चीज़ नहीं कर रहे. There is a lot of explanation that needs to be done. हमारी अपनी भी detailed inquiry अभी चल रही है. We are still looking into things, forensics हो रहे हैं. इस वक्त तक जो हमने आपको डिटेल्स आपके साथ शेयर की हैं, जैसा कि AVM साहब ने बताया कि it was a supersonic flying object, most probably a missile, but it was certainly unarmed. It was certainly unarmed. So whatever has caused this, we will wait for an explanation from the Indian side. That is where I will stop right now. As far as हमारी preparations क्या हैं, जैसे आपको वाइस मार्शल साहब ने बताया कि राइट फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन ये पाकिस्तान इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर था इंडिया में, बट वहाँ पे भी हमने इसको पिक कर लिया राइट फ्रॉम द स्टार्ट. वी कंटिन्यूसली केप्ट मॉनिटरिंग एंड द मोमेंट इट स्टार्टेड टेकिंग ए टर्न टुवर्ड्स द पाकिस्तानी टेरिटरी, उसी वक्त जो भी हमारे टैक्टिकल और टेक्निकल एक्शंस थे SOPs के मुताबिक वो इन प्लेस हो गए थे. टोटल जो इसका टाइम था जो ये पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर रहा वो 3 मिनट और तकरीबन 24 सेकंड था, और उस दौरान जो एक्शंस करने थे वो हो गए थे. वी एग्जैक्टली न्यू द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट. उससे थोड़ी देर बाद जो करीब तरीन हमारी जो मिलिट्री फॉर्मेशन था उसकी फोर्सेस वहाँ पे पहुँच गई, और उसके बाद जो फर्दर इसको रिट्रीव किया गया और फिर एयरफोर्स ने इसको आगे टेक ओवर कर लिया. सो एक्शंस, रिस्पांस, एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज परफेक्ट. वी डिटेक्टेड इट ऑन टाइम एंड वी कुड टेक केयर ऑफ दैट. आपने जो आखिर में बात की, मैं आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि इस तरह की चीज़ में आप ये बात करेंगे. मैंने लास्ट अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बड़ी क्लैरिफाई कर दी थी कि फ़ौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है, और ये ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगा. एंड आई वुड अगेन रिक्वेस्ट कि इसके अंदर अननेसेसरी ना स्पेकुलेट किया जाए और ना ही इस चीज़ के अंदर किसी किस्म की अननेसेसरी डिस्कशंस की जाएं. वही हमारे सब के लिए अच्छा है. एंड आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दिस एनी मोर. थैंक यू.
तो आपने सुना कि जिस अंदाज में DGISP जनाब मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब फरमा रहे थे कि एक प्रोजेक्टाइल जो कि हिंदुस्तान की हदूद से उड़ा, जो कि तक मार्च की 9 तारीख को 6:43 यानी कि 6:43 PM पे ये उड़ा, और उसके बाद ये उड़ के ये पाकिस्तानी हदूद की तरफ बढ़ता है और पाकिस्तानी हदूद में भी ये तकरीबन 124 किलोमीटर तक अंदर दाखिल हो जाता है। इसमें जो दौरानिया रहता है ये 6:50 में पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होता है और फिर मियां चन्नू के इलाके में ये जो प्रोजेक्टाइल है आके गिर जाता है। ये सारे मामलात बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एक जानिब आलमी कुव्वतों की बात करें तो आलमी सतह पे बहुत कुछ चल रहा है, दूसरी जानिब पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अगर इस तरह के वाकयात हों तो ये मजीद सूरत हाल का में मजीद बिगाड़ पैदा करते हैं। एक और मसला इसमें यह भी आता है कि ये जो मिसाइल था, शायद इसने अभी तक तो कोई ऐसी कोई इतलात नहीं थी कि इसने नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसकी इसका जो टेरिटरी थी, जो इसकी हदूद थी, उसमें बहुत सारी चीजें आ सकती थी, यानी कि लोकल और इंटरनेशनल फ्लाइट का पाथवे हो सकता था, और अगर में से किसी भी एक फ्लाइट को हिट करता तो न जाने कितनी सारी इंसानी जानें इसमें जाया हो जाती। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन करें जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, सीनियर तजियाकार हैं। इनसे इस तरह जानते हैं कि आखिर मामलात हुए क्या और आखिर ये मुल्क किस तरफ बढ़ता जा रहा है। एक तरफ आलमी सतह पे मामलात कशीदा हो रहे हैं तो दूसरी जानब भारत की इस तरह की शर अंगेजी के पीछे वजूहात क्या है। हारिस साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हारिस साहब, आपने कल देखा होगा DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये क्या सडनली मामलात तब्दील हो रहे हैं। एक तरफ हम देख रहे थे रशिया यूक्रेन में टेंशन्स बढ़ी हुई हैं, फिर इस तरीके से पाकिस्तानी हुदूद में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है। इज इट जस्ट ए एक्सीडेंट? देखें, यही सबसे बड़ी इंडिया की प्रॉब्लम्स हैं कि इंडिया कभी भी अपने नेबर्स का ख्याल नहीं करता। एक अगर आपका प्रोजेक्ट आई वुड से इवन मिस डायरेक्टेड भी हुआ है, आउट ऑफ कंट्रोल भी चला गया, तो आपकी पास आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इमीडिएटली पाकिस्तान, आपके पास DG ऑप्स की हॉटलाइन होती हैं, इमीडिएटली कॉल एंड टेल देम कि इट इज़ मिसगाइडेड, इट इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, वी कैनट कंट्रोल इट, देन प्लीज बी केयरफुल एंड टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स। अब ये आप कितना बड़ा इख्तियार है कि एक ऑब्जेक्ट उड़ती है, वी डोंट नो कि ये कोई ड्रोन है या कोई मिसाइल है या सुपरसोनिक मिसाइल है, और वो टेक ऑफ करके पाकिस्तान मिलिट्री ने पिक कर ली कि कहाँ सासर से ये टेक ऑफ हुआ है। फिर उसके बाद 104 किलोमीटर ये अपनी टेरिटरी में इंडियन ट्रैवल किया है, फिर उसके बाद ये पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस किया है, और तकरीबन 300 से ओवर किलोमीटर ये जाके और फिर मियां चुन्नू में ये गिरता है। और हमने टोटल इसको मॉनिटर किया, बट बात यह है कि क्या इंडिया आपको इस्ताल दिलाना चाहता है? इंडिया चाहता है कि आप ओवर रिएक्ट करें और प्रोवोकेशन में आ जाएं, और कोई हम ऐसा स्टेप ले लें जिससे एस्केलेशन हो, हालात ज़्यादा ख़राब हों, और इंडिया के पास एक एक्सक्यूज़ आ जाए कि जी अब देखें पाकिस्तान ने हमारा था, गलती से ये कर दिया, गिरा दिया, और हम उसकी जगह पर अब मिस एडवेंचर करने लगे हैं। हालांकि मिस एडवेंचर करने की इनकी जरूरत नहीं है, इसलिए कि आपको मालूम है कि 27 फरवरी 2019 को हमने इनके साथ क्या किया था, कैसे इनके जहाज़ गिराए थे। इन्होंने एक दरख्त, 3-4 दरख्त और एक कवा गिराया, फिर हमने इनको सबक सिखाया, फिर इनके पायलट छोड़ दिया, और उस पर भी ये कहने लगे कि पाकिस्तान ने डर के कर दिया। हालांकि वी गेव देम अ मैसेज ऑफ पीस कि वी वांट टू लिव पीसफुली विद आवर नेबर्स, बट हमारे पीस को, अमन की कोशिश को हमारी कमजोरी मत समझें। ये इनको बड़ा क्लियर है। अच्छा हारिस साहब, जी हारिस साहब, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि डेफिनेटली यहाँ पे ये जो इंसिडेंट है ये एक तरफ से नाकामी बताता है कि इंडियन टेक्नोलॉजी फेलियर एक तरफ से कितना खुल के वाजे हो रहा है, तो दूसरी जानिब से हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं उन्होंने एक बार फिर पेशावराना और जिम्मेदाराना चीज़ों का मुजाहरा भी किया। लेकिन ये कितना ज़्यादा खतरनाक है कि इंडियन टेरिटरी से एक ऑब्जेक्ट आता है, उड़ता है, नेबरिंग कंट्री में जाता है। नेबरिंग कंट्री भी कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसके साथ बड़े गर्मजोशी वाले मामला हों। पाकिस्तान, इट्स अगेन नॉट ए सिंपल थिंग। क्या कोई इंडियन ट्रैक नहीं कर सका? क्या इंडियन टेक्नोलॉजी इतनी बेकार हो चुकी है कि उनको पता ही नहीं चलता कि उनके यहां से कब कौन सी चीज उड़ के कहीं और चली जाए? इनकी टेक्नोलॉजी बहुत ऑब्सोलेट है। आपने देखा कई दफ़ा इन्होंने मिसाइल टेस्ट फायर किए हैं और वो उधर ही उड़ के टेक ऑफ किया और उधर ही ब्लास्ट कर दिया मैनी टाइम्स। ऑन द कंट्री, पाकिस्तान की दुनिया में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तमाम ममालिक पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं। हमारे इवन जो हमारे स्ट्रेटजिक एसेट्स हैं उनकी कमांड एंड कंट्रोल इतनी फुल प्रूफ है, इवन अमेरिकन इसको एक्सेप्ट करते हैं। और आपके सामने आए दिन इंडिया में यूरेनियम जो है
ये स्मगल हो रहा होता है, कभी नेपाल जा रहा है, कभी खुद वहाँ पकड़ा जाता है, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन कभी इस पर बात नहीं करता, इसलिए कि इंडिया से उनके अपने मफादात जुड़े हुए हैं। अभी आपको मालूम है उन्होंने एक क्वाड ग्रुप बना लिया है, उसमें इंडिया की ज़रूरत है, फिर चाइना के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर पाकिस्तान के सी पैक ना काम करना चाहते हैं, और साउथ चाइना सी की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से, और फिर इंडिया से तजारत भी है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए अगर हम देखें तो इस वजह से ये जो दोगली पॉलिसी है अमेरिका की और दूसरे ममालिक की, ये इसी वजह से पाकिस्तान इज सर्चिंग फॉर न्यू अलाइनमेंट्स। अभी रशिया गए हैं तो अमेरिकन ने बड़ा सख्त प्रॉब्लम हुआ है उनको, दे वर नॉट हैप्पी। पाकिस्तान के $55 मिलियन का नेशनल बैंक को पेनल्टी डाल दी यूएस सेंट्रल बैंक ने जी कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग को रोका नहीं है, ये एक्चुअली मैसेज कन्वे करने के लिए। तो आई थिंक इनको सबको ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन को चाहिए कि इंडिया पे पाबंदियां लगाए। वहाँ पर जो चोरी होता है यूरेनियम, कितना सीरियस चीज़ है कि एनरिच यूरेनियम अगर आप चोरी कर रहे हो तो ये किसी भी एक नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में या इरिस्पॉन्सिबल स्टेट के हाथ में आ जाए, और उसके बाद में कॉम्प्लिकेशन भी। और नो देखें ईरान के साथ ये क्या क्या कर रही है दुनिया। तो इसलिए इंडिया को खुला छोड़ देना, और वो खुला उसको छोड़ना जो डिलीवर नहीं कर सकता, जिनके अपने सिस्टम ही ठीक नहीं है, जिनके एसओपीज कमज़ोर हैं। और उसके बाद जिस तरीके से ये फायर किया गया और फिर वो जाके गिर गया, ये कहीं हमारे किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के एरिया में आ जाता तो फिर हम ज़ाहिर है इसको गिरा भी देते हैं। लेकिन बात यह है कि इंडिया को ये पता चल गया कि हमारी सर्वेलेंस कितनी अच्छी है, हमारी मॉनिटरिंग कितनी अच्छी है, और हमें 24 घंटे हम इनकी सर्वेलेंस करते हैं। लेकिन 24 आवर्स वी आर ऑन द अलर्ट, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। हारिस साहब, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर ये खुदा ना खास्ता पाकिस्तान से इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाता तो अब तक तो दुनिया में आवाजें लग चुकी होती कि पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज नहीं, मिलिट्री असासे महफूज नहीं। ये हिंदुस्तान के लिए सवाल क्यों नहीं पूछे जाते? क्योंकि ये महज गलती तो नहीं हो सकती, या तो ये प्लान्ड है, और अगर प्लान नहीं गलती है तो फिर तो पूरे के पूरे इंडियन डिफेंस सिस्टम के ऊपर एक सवालिया निशान है। और ऐसे मुल्क के जिसका डिफेंस सिस्टम इतना बड़ा सवालिया निशान हो, उसके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी, फिर तो ये अगेन बड़े खतरे का निशाना हो सकती है। देखिए यही प्रॉब्लम है कि इंडिया को हर दफ़ा इस तरह की कोई हरकत करता है, कभी मिस एडवेंचर करता है। और अभी भी आप ये देखें कि अमेरिकन ने सेनेट में अभी भी उनके रिपब्लिकन बिल मूव कर रहे हैं कि पाकिस्तान को के एक जो स्टेट स्पॉन्सर्ड मुल्क है वो शामिल किया जाए और सैंक्शन लगाई जाए। इमेजिन करें, दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है, 5th जनरेशन वार पाकिस्तान में है, उसके बाद चाइना एम्बेसी देख लें, स्टॉक एक्सचेंज देख लें, उसके बाद लाहौर में हाफिज सईद की जगह पर जाके धमाके हो गए, और लास्ट आपके अभी लंदन को जो हमने पकड़ा है सर्विंग नेवल कमांडर को, क्या हुआ? दुनिया ने कोई बात नहीं की। सो इसलिए वी नाउ पाकिस्तान रियलाइजमेंट इसी वजह से कर रहा है कि वी शुड बिहेव। आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ सॉवरन इस्लामिक न्यूक्लियर स्टेट। जब तक हम इकोनॉमिक तरक्की नहीं करेंगे तो हम अपने फैसले अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं कर सकेंगे। इसीलिए सीपैक के लिए हम लगे हुए हैं कि किसी तरीके से अफगानिस्तान में अमन हो जाए, बलूचिस्तान में अमन हो जाए, हम सीपैक कंप्लीट कर लें, और इतना बड़ा हमें इकोनॉमिक जंप मिलेगा कि हम अगर इकोनॉमिकली प्रॉस्पर करेंगे तो दुनिया की आंखों में आके डाल के अपने फैसले करेंगे। ये तकलीफ है इन ममालिक को जिसकी वजह से वो इंडिया को यूज़ करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। आई थिंक वी हैव टू कीप डूइंग आवर वर्क। हमें सीपैक बनाना है। जिस दिन सीपैक बन गया, यहाँ से ये पोर्ट ऑपरेशनलाइज हो गया, पाकिस्तान के लिए फिर आसमान इज अ नो लिमिट। आई थिंक दैट वी शुड बी डूइंग ऑल द टाइम। अच्छा आरिस नवाज साहब, एक तो पहलू ये है कि ठीक है इंडियन डिफेंस की हम बात भी कर रहे हैं, पाकिस्तान के सीपैक का प्रोजेक्ट भी है। एक जानिब ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है, ये ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम को टेस्ट करने की हिंदुस्तान ने कोशिश की थी, और फिर जिस तरीके से अगर तो रेडार में आ गया, जिस तरीके से आ चुका, तो ये कह दिया जाएगा कि एक मिस फायर हो गया और गलती हो गई। लेकिन अगर तो ना होता तो फिर आपको पता है इंडिया में आज भी इलेक्शंस का जो माहौल है उसमें किसी को कुछ माइलेज देने की भी कोशिश की जा सकती थी। तो क्या ये पाकिस्तान को डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करने की कोशिश हो सकती है, आपको लगता है? दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट पाकिस्तान मिलिट्री इज वर्किंग ऑन इट। और हमने उनको मैसेज पहले ही कन्वे कर दिया। वी नो कि कहाँ से ओरिजिन हुआ सासर से, कौन सा ट्रैक की स्टॉक पे गया, कहाँ से उसने डाइवर्सन की, कहाँ पर जाके गिरा। तो दे वी हैव टोल्ड देम एंड दे नो इट कि पाकिस्तान का मॉनिटरिंग सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, सर्वेलेंस सिस्टम इज लेटेस्ट। सो ये कोई ऑब्जेक्ट फ्लाई करेंगे पाकिस्तान विल बी एबल टू, और उसके काउंटर मैयत भी हम कर लेंगे। अभी आपके सामने आज परेड हुई है जिसमें एयरफोर्स की, जिसमें
JC-10 एयरक्राफ्ट लेटेस्ट जो हैं चाइनीज, वो हमें मिले हैं और हमने उनकी कारकर्दगी भी दिखाई कि हमारे पायलट कितने फुली ट्रेंड उसके ऊपर हैं एंड हाउ दे वर फ्लाइंग इट। और यही इंडिया की नींदें उड़ जाती हैं, क्योंकि उनकी एक तो मिलिट्री उनकी अनप्रोफेशनल है, नंबर 2 उनके पास ऑब्सोलीट वेपन्स हैं, जहाज भी उनके पास ऑब्सोलीट हैं। अगर 5-6 आपने राफेल ले लिए तो ये क्या देयर कांट गो, कोई बहुत बड़ा उन्होंने तीर मार लिया है। आई थिंक जो हमने अब अपनी टेक्नोलॉजी ली है, वी मच अहेड ऑफ हिम। इसलिए इंडियन को यही फिक्र है, दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन कि यस कि देखें कि इसका क्या असर होता है, एंड दे फाउंड द आंसर। नाउ दे शुड बी नोइंग इट कि एनीथिंग टेकिंग ऑफ फ्रॉम देयर एयर बेस और एनी कंट्रोल विल बी मॉनिटर्ड एंड अकॉर्डिंगली काउंटर। अच्छा आरिफ साहब, ये तो बिल्कुल ठीक भी है, और ये कहा भी जाता है कि इट्स नॉट द मशीन, इट्स अ मैन बिहाइंड द मशीन। आज एक बड़ी जबरदस्त तकरीब हुई, J-10C के पाकिस्तान की फ्लीट में शमूलियत भी हुई। अब कंपैरिजंस किए जा रहे हैं हमारे पाकिस्तानी मीडिया में, इंडियन मीडिया में, कि J-10C इज मोर सुपीरियर और राफेल, या अगर कल को एक बैटलफील्ड में दोनों मशीन्स आमने सामने आती हैं तो हु विल बी सुपीरियर? अगर कुछ कमेंट कर सकें इसके बारे में। देखिए, सबसे बड़ी जो आपने बात की है, इट इज मैन बिहाइंड द गन, इट्स नॉट गन बिहाइंड द मैन, डू रिमेंबर। और उसके लिए हौसला, जज्बा, प्रोफेशनलिज्म एंड टू डिफेंड योर कंट्री एंड डिफेंड योर नेशन एंड डिफेंड पीपल ऑफ पाकिस्तान, ये हमारी मिलिट्री का मोटो है। और जज्बा शहादत, मैंने इंडियन जनरल में कई दफ़ा सुना है, वो कहते हैं हम पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए कि इनको शहादत का शौक है और हमें मौत से डर लगता है। तो जब ये बात हो और फिर हमारी ट्रेनिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज वी बिलीव इन क्वालिटी, इन वेपन सिस्टम, इन प्रोफेशनलिज्म और ऑफिसर्स एंड ट्रुप्स, वो हमने इनको दिखा दिया कि आर मिलिट्री इज बैटल हार्डेंड, वी आर फुली ट्रेंड। हमने अब मुल्क से तकरीबन दहशतगर्दी ख़त्म कर दी है। वो काम जो 51 कंट्रीज नेटो की मिल के अफगानिस्तान में नहीं कर सके, हमने सिंगल हैंडेडली अपनी प्रोफेशनलिज्म से पाकिस्तान में ख़त्म की, जिसमें एयरफोर्स भी हमारा साथ दे रही थी और आर्मी भी थी। और फिर हमने आपने देखा कि 5 साल में 4 दफ़ा हमने इनकी आबदोश को आइडेंटिफाई किया, सर्वेलेंस की। और सर्वेलेंस मतलब आइडेंटिफाई का होना मतलब है कि क्लियर शॉट, इट इज अ क्लियर किल। और अगर सबमरीन आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर उसका उसका पर्पस ही खत्म हो जाता है। इट इज गॉन, इट इज गॉन। तो ये आपको पता चल गया कि तीनों मुसल्लह अफवाज, उनकी सिनर्जी बहुत अच्छी है, उसके बाद उनकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है, और हर वक्त हमदन तैयार, इंडिया जैसे कनिंग दुश्मन से हर वक्त लड़ने के लिए, मुकाबला करने के लिए, डिफेंड करने के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की माशाल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की जाए तो वी आर एट पार, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं प्रोफेशनलिज्म में। लेकिन हारिस नवाज साहब, एक सवाल जरूर बनता है, इस वक्त मुल्क में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी अपने उरूज पे नजर आती है। कल इस्लामाबाद में भी एक इंसिडेंट हुआ और अब ये सारी चीजें नजर भी आ रही हैं, और दूसरी साइड पे ग्लोबली बहुत कुछ हो रहा है, अब इंडिया भी एक्टिवेट होते हुए नजर आ रहा है। ऐसे सिनेरियो में कल जिस अंदाज में मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने कहा, DGI-SPR साहब ने, कि हमारी फोर्सेस का पॉलिटिक्स में कोई ताल्लुक नहीं है, इस सिनेरियो में पाकिस्तान कहां खड़ा होगा सर? मुझे ये तो बताएं जरा। देखें, ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है, ख़ास तौर पे देखें कि इस वक्त जियो पोलिटिकल इन्वायरमेंट्स क्या हैं। आप रशिया और यूक्रेन की प्रॉब्लम देखें, दुनिया में उस वक्त क्या उसके असरात आ रहे हैं। उसके बाद अफगानिस्तान की सिचुएशन, अफगानिस्तान को बैक बर्नर में डाल दी है, वहाँ पर इस वक्त हालात ठीक नहीं है और हमें उससे बड़ा कंसर्न है। फिर इंडिया आपको प्रोवोकेशन हर वक्त करता रहता है, वो तैयार बैठा हुआ है। चाइना से भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होके आए हैं और भी रशिया के होके आए हैं। बात यह है कि क्या इस वक्त मुल्क में हमें स्टेबिलिटी चाहिए या हमें इस वक्त इंस्टेबिलिटी चाहिए। और अगर जबकि एक जमहूरी तरीके में ये होता है कि आप इलेक्शन होता है, फिर उसके बाद 5 साल गुजरते हैं, हुकूमत मैंडेट अपना पूरा करती है, नहीं करती है, ऑपोजिशन क्रिटिक करती है, और देन यू गो फॉर मैनिफेस्टो, नए आते हैं और आप इलेक्शन करते हैं और नई हुकूमत आए जिसको भी हम सेलेक्ट करते हैं। आई मीन इस वक्त इन एनवायरनमेंट के अंदर क्या पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चाहिए? और सेकंड, ऑपोजिशन के पास कौन सा ऐसा सोल्यूशन है जिसको वो ला के पाकिस्तान में महंगाई भी ख़त्म कर देंगे, बहुत अच्छे हालात कर देंगे, आवाम को बहुत ज़्यादा कोई वेलफेयर देंगे, रिलीफ दे देंगे और उसके बाद बड़ा अच्छा काम करेंगे। या जो हुकूमत चल रही है स्टेबिलिटी रहे, 1 साल और चले, फिर इलेक्शन हो जाए। और ये अगर ये ऑपोजिशन का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब होता है, आप बताएं कि ये 2 मेजर पॉलिटिकल राइवल पार्टीज हैं, उसके बाद इनमें कितनी रस्साकशी होगी।
कितनी इनमें खिचड़ी इनफैक्ट मोस्टली पॉलिटिकल पार्टीज का तो ये भी नहीं तय है कि हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर। आई थिंक ओवरऑल देखें तो ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। आई विश के पॉलिटिशियन पाकिस्तान के लिए सोचें, नॉट अपने जाती मफादात और सियासी मफादात। और ये जो लास्ट कमेंट कर दें हारिस साहब, ये जो अदम एतमाद, अदम बर्दाश्त, ये जिस तरीके से पाकिस्तान के कैपिटल में जो कुछ हो रहा है, ये मनाजर जा रहे हैं, पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया की टीम का दौरा भी चल रहा है, ये सीन्स जब इंटरनेशनल मीडिया पे जा रहे हैं तो क्या तासुर जा रहा है पाकिस्तान का? देखें, एक तो सबसे अफसोस की बात है कि टॉलरेंस हमारी सोसाइटी में ख़त्म हो गई है और कुछ पॉलिटिशियन सिर्फ डंडे के जोर पे, अपने मैन पावर के जोर पे अगर वो मुसल्लत होना चाहते हैं तो ये अनएक्सेप्टेबल है। यू कैनॉट हैव अ स्टेट विद इन द स्टेट, नंबर वन। सेकेंड ये कि आपके पास आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कर दिया, नाउ वेट फॉर द डे, गो टू द असेंबली और आप 172 लोगों को लेके जाएं और स्पीकर को बता दें हमारे पे मेजॉरिटी है। इट्स वेरी सिंपल। बजाय इसके कि आप ऐसी बातें करें और फिर वो ज़बान इस्तेमाल करें, आई थिंक ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट भी और हमारे प्राइम मिनिस्टर को आई थिंक अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज किसी को भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और आप रिस्पेक्टफुल तरीके से जो भी कन्वे करना चाहते हैं करें, अपनी बात करें, अब ऑपोजिशन की बात करें और माहौल ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए और वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट 22-25 साल के बाद आई है और बहुत ज़्यादा कुव्वतें हैं जो ये नहीं चाहती। दे वांट टू सेंड अ वेरी हार्ड इमेज ऑफ पाकिस्तान। हम सॉफ्ट इमेज भेजना चाहते हैं, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की टीम आई है और अब अल्लाह का शुक्र है, ये होप कि ये दौरा कामयाब होता है जिससे पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट के तमाम रास्ते खुल जाएंगे। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट इज ऑलरेडी डिवोटिंग लॉट ऑफ एफर्ट। सिक्योरिटी, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी उनको दी हुई है, लेकिन ये हमारे पॉलिटिशियन को देखना है कि क्या ये पाकिस्तान से हमदर्दी कर रहे हैं या पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड जनाब हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तजज़ियाकार हैं और जिस अंदाज से उन्होंने तमाम तर पहलुओं का, खारजी और दाखिली पहलुओं का अहाता किया और जो कुछ बताया, यकीनी तौर पे ये सारी चीज़ें बहुत अहम है। इस वक्त पाकिस्तान जिस नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है उसमें पाकिस्तान किसी भी तौर पर किसी भी अनस्टेबिलिटी का मुतामिल अगर हुआ तो ये पाकिस्तान के आने वाले कल के लिए किसी भी तौर से बेहतर ना होगा। यहाँ पे एक वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद इसी गुफ्तगू को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे थे कि मुल्क में जो अदम एतमाद, अदम बर्दाश्त की सारा माहौल चल रहा है, इसमें ऑपोजिशन कहां खड़ी है? कल जो पार्लियामेंट लॉजिस का वाकया हुआ, इससे जो पाकिस्तान का तासुर दुनिया भर में गया वो किसी भी तौर पे मुस्बत ना होगा। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मेंबर कौमी असेंबली मुस्लिम नून से ताल्लुक रखने वाली मोहतरमा किरण डार साहिबा मौजूद हैं। इनसे जरा जानते हैं कि आखिर कल हुआ क्या और अब मामला किस नहज पे आते हुए नजर आ रहे हैं। किरण जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किरण साहिबा, पहले तो ये बताएं कि आप लोग सब पहले महफूज हैं और हैं कहां पे आजकल? ये सवाल मेरे ख्याल से कल के इशू से अगर पहले आप पूछते क्या क्या आप महफूज है तो मैं जवाब यही देती कि मैं महफूज हूँ, बिल्कुल खैराफियत से हूँ, लॉजिस में हूँ, बहुत अच्छी सिक्योरिटी में हूँ। लेकिन कल के वाकये के बाद मेरे ख्याल से ये सवाल जो है वो उसका तरीका है वो पूछने का, वो मेरे ख्याल से डिफरेंट होना चाहिए कि क्या आप महफूज हैं लॉजिस में। मेरे ख्याल से ये अगर जुमला होगा तो शायद चलें यही पूछ लेते हैं, क्या आप महफूज है पार्लियामेंट लॉजिस में? कल के वाकये के बाद तो मुझे लगता है कि यहाँ कोई भी महफूज नहीं है और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक पाकिस्तान का बहुत बुरा इमेज पूरी दुनिया में गया कल के इंसिडेंट के बाद। मुझे समझ नहीं आती यहाँ अगर मैं ये जुमला बोलूं कि चिड़ी जो है वो पर नहीं मार सकती और इतना बड़ा कल इंसिडेंट हो गया और उसको जो रंग भी दिया गया, मुझे समझ नहीं आती। जब अदम एतमाद के लिए रिक्वेजिशन दे दी गई है तो जितनी जल्दी हो आप वो कर लें। आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, हुकूमत इतनी कॉन्फिडेंट है कि उनके नंबर पूरे हैं, तो फिर जल्दी से क्या कहते हैं सेशन को कॉल करें और इस सिस्टम से बाहर निकलें जी। खुदा सिस्टम कह रहे हैं कि जी अदम एतमाद है या नहीं है जी, वो मुझे नहीं समझ आई। कल वही जिस चीज का हमें खतरा था कि हमारे जो मैनेज हैं उन्हें खतरा है, उन्हें किडनैप भी किया जा सकता है, उन्हें कहीं बंद भी किया जा सकता है, कोई ना कोई सियासत जो है वो उनके साथ खेली जा सकती है, जिसकी वजह से हमें बाउंड कर दिया गया था कि हमने लॉजिस से बाहर नहीं जाना। इस वक्त हम सब लोग लॉजिस में हैं
और हम समझ रहे थे अपने आप को कि हम लॉजेस में रहते हुए बहुत सेफ हैं, बहुत सेफ एंड साउंड हैं। इवन हमारे घर वाले भी, मुझे लगता है कि मैं आई एम बिलोंग्स टू लाहौर, वो लाहौर से ज्यादा मुझे ये समझते हैं कि मैं इस्लामाबाद के इन लॉजेस के अंदर ज्यादा सेफ हूँ। लेकिन कल के इंसिडेंट के बाद वो भी कह रहे हैं जी खैरियत है, हर कोई मैं कहते हैं घंटे के बाद कभी किसका फोन आ रहा होता है, कभी किसी का फोन आ रहा होता है कि आप खैर लेकिन किरण डार साहब, ये कल बिगाड़ क्या पैदा हुआ? अगर शेख रशीद साहब का वर्जन सुने तो वो कहते हैं अंसारुल इस्लाम का एक जत्था है जो कि वहां पे एंटर हुआ, उसने वहां पे लोगों को जदोकोब किया। वो तो ये तक कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ खवातीन हैं, उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ा। आखिर बिगाड़ हुआ कल कहां पे? मुझे ऐसी कोई फुटेज दिखा दे, मुझे ऐसी कोई भी फुटेज दिखा दे जिसमें उन्होंने बिगाड़ पैदा किया हो। और फिर मैं बात कहूंगी कि पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर बाहर सिक्योरिटी के इतने लोग हैं, मैंने इवन के किसी ने भी आना हो, किसी भी एमएनए के किसी भी रिश्तेदार ने आना हो, किसी ने भी मिलने आना हो, जब तक वो मेन गेट से कंफर्म नहीं होगा, वो एमएनए से भी कंफर्म नहीं होगा जब तक, तब तक वो अंदर एंटर नहीं हो सकता। मुझे ये बता दें ये एंटर कैसे हो गए, ये सिक्योरिटी कोलैप्स हो कैसे गया? ठीक। और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि हम पीटीआई की खवातीन के साथ बदतमीजी की गई या उनके साथ कुछ मिसबिहेव किया गया। मुझे आप कोई एक फुटेज बता दें, मुझे उस फुटेज में कोई खातून नजर नहीं आई। तो फिर ये कैसे कह रहे हैं कि हम तो ये बिगाड़ पैदा कैसे हुआ? क्या पुलिस खुद अंदर आ गई, ये जदोकोब किया, क्या माजरा क्या हुआ? क्योंकि जो फुटेजेस नजर आ रही हैं उसमें चीजें क्लियर नहीं है अभी तक। देखिए आपके मीडिया के सब लोग वहां मौजूद थे और हम भी लॉजेस में थे जब ये इशू इंसिडेंट हुआ, तो हमें कहा गया कि आप लोगों ने अपने लॉजेस से बाहर नहीं आना, और हम और बाउंड हो गए। हम भी आपकी ही तरह टीवी के ऊपर यहाँ पे बैठ के देख रहे थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जब आपको क्लियर नहीं है, डेफिनेटली वहां पर जो भी एमएनए वहां पर मौजूद थे वो ज्यादा मेरे से और आपसे ज्यादा अच्छे, आपसे सॉरी मेरे से ज्यादा अच्छे तरीके से वो आपको बयान कर सकते हैं, क्योंकि हमें ग्रुप में आ गया था कि जी आपने लॉजेस से बाहर नहीं जाना, अपने अपने लॉजेस में जो है आपने कन्फाइंड रहना है। तो किरण डार साहब, अभी आपको लगता है गालबन 12 से 14 दिन का वक्त है अभी ये तो सारे प्रोसेस को मुकम्मल होने में, अगर यही सारी सूरत हाल रहती है, अगर हुकूमत की बात करें, अपोजिशन की बात करें, और अगर ये कहीं पे एक आइस ब्रेक नहीं होती तो मजीद ये इस तरह के वाकये रोनुमा हो सकते हैं ना? देखिए मुझे ये बताएं, हमने कोई गैर आईनी काम किया है? ये कोई गैर आईनी काम नहीं है। शेख रशीद साहब क्यों फरमा रहे हैं कि अंसारुल इस्लाम के लोग जत्थे डंडों पे तेल लगा के घूम रहे हैं और वो तैयार है पूरी तरीके से? ये इस तरह से क्यों बयानात आ रहे हैं? देखिए मैं अभी बाहर से होके आ रही हूँ, ठीक है, क्या मुझे आप बता दें, आप अपना कैमरा रन पकड़े और उसको कहे कि वो दिखाए आपको, वो आपको दिखाए कि वो कहाँ जत्थे हैं, कहाँ वो जत्थे हैं। आप खुद तो सिक्योर किसी को कर नहीं सकते, और अगर खुदा कोई इंसान अपना कोई खुद से गार्ड रख रहा है, आप उसके ऊपर भी इल्जाम लगा रहे हैं। अगर आपके पास इतना सिक्योर होते हैं एमएनए, ठीक है, तो वो अपने अपने गार्ड क्यों रखें? सही। तो अब ये सूरत हाल क्या, मतलब अब इसमें आगे क्या होता हुआ नजर आ रहा है? अब तो ये भी सुनाई दे रहा है कि तहरीक इंसाफ ने भी डी चौक पे बड़े जलसे का ऐलान किया। जलसे चलेंगे, इस तरह से तहरीक आगे बढ़ेगी? मुझे बताएं, 2014 के धरने से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सेलेक्टेड वजीर आजम इमरान खान न्याजी अभी तक तो उस कंटेनर से ही नहीं नीचे उतरे। और अभी की कुछ तकरीरें हैं वो आपने भी सुनी, मीडिया भी उसके ऊपर बहुत से सवाल उठा रहा है। हम तो चना ऑपोजिशन है, चना जी, ऑपोजिशन का काम ही यही है कि इन्होंने सवाल उठाने हैं। आप मीडिया देखें, वो लग रहा है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम की स्पीच है। वो तो ऐसे कह रहे हैं कि हम उनके हाथ कबाल है। 3.5-4 सालों से कोई बंदा, मुझे बता दें, ऑपोजिशन का कोई बंदा है जिसको इन्होंने जेल की हवा ना खिलाई हो? अभी भी उनके निशाने पर हम हैं। आप कुछ कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, सवाए इसके कि मियां मोहम्मद नवाज साहब और मियां मोहम्मद शहबाज साहब की जो है तख्तियां, वो उतार के अपनी तख्तियां लगा के तो वो काम कर ले। मुझे कोई ईंट दिखा दे, मुझे पंजाब के अंदर, चले लाहौर भी चले, पूरे पंजाब के अंदर मुझे कोई ईंट दिखा दे। तो वो यही कर रहे हैं। अब मैं उनको क्या कहूँ, वो डी चौक पे हुकूमत उनकी, वो डी चौक पे वो करेंगे, जलसा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि वो डी चौक पे जलसा करने के बाद सेशन कॉल करेंगे। कमाल है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो पोजीशन में है या वो हुकूमत में है। उन्हें कोई बताए, वो जो उनके मावन है ना, जो उनके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, जो उनको गाइड कर रहे हैं, उनको बताएं कि वो वजीर आजम है। ये वजीर आजम का तरीकेकार नहीं होता। मेरे बड़े कहते थे कि बड़े होने में और बड़े बनने में फर्क है, और मेरे बड़े ये भी कहते थे, और सबके बड़े ये कहते हैं कि जब आप बहुत बड़ी पोस्ट पर होते हैं
तो बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। ये स्टेट की जिम्मेदारी इन जैसे इंसानों के ऊपर है। कमाल है। ये फेयर इनफ, क्योंकि ऐसे ही वाकई रूनुमा होंगे, फिर ऐसे ही वाकई रूनुमा ये बात आपकी यहां तक तो दुरुस्त है, क्योंकि अगर इस तरह की अगर सिचुएशन होती है तो इसका ज्यादातर खमियाजा मौजूदा हुकूमत को भुगतना पड़ता है। लेकिन करण डार साहब, अभी कुछ सवाल ये भी हैं कि अगर खान साहब के खिलाफ जो अदम एतमाद की जो तहरीक है कामयाब हो जाती है तो अगला लाएमल क्या होगा? कि अर्ली इलेक्शंस कॉल किए जाएंगे? वजीर आजम कौन होगा? सदर कौन होगा? इसके ऊपर कुछ मुशावरत हुई है? देखिए, इस पे भी काम हो रहा है, हमारा है कि पहले एतमाद पर हम काम करें, उसके बाद जो सेटअप बनेगा उस सेटअप का काम ही यही होगा कि पाकिस्तान के जो अगले इलेक्शन है, जो अप्रोक्सीमेटली अभी देखिए अभी इस पे काम हो रहा है कि आफ्टर 6 मंथ्स और आफ्टर 9 मंथ्स जो है इसके ऊपर काम होगा इस अदम एतमाद के बाद, कि हम साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, तो उसके ऊपर काम होगा और उसके बाद जो है इन असेंबलीज को डिसॉल्व कर दिया जाएगा और फिर री इलेक्शन की तरफ जाएगा। उस इलेक्शन की तरफ जिस इलेक्शन के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा, कोई ये नहीं कहेगा ये रिगिंग है, कोई ये नहीं कहेगा कि हमारे साथ धांधली हुई है, उसके लिए जो जितना टाइम पीरियड हमें चाहिए अदम एतमाद के बाद, वो थोड़ा सा टाइम पीरियड है, वो 6 महीने भी हो सकता है, वो 6 महीने से 7-8 महीने भी हो सकता है, और उसके बाद जो है हम नए साफ शफाफ इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। करण डार साहब हमारे साथ मौजूद थी, मेंबर कौमी असेंबली मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। और यकीनी तौर पे जो कुछ सूरत हाल, जो कुछ सिनेरियो कल हुआ, ये जो फुटेजेस जो मनाजर आए, ये किसी भी तौर पे पाकिस्तान के इमेज के लिए मुस्बत नहीं थे। कल इस तमाम सूरत हाल के बाद जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी तो जनाब मोहतरम शेख रशीद साहब, वजीर दाखिला साहब ने क्या फरमाया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और एक उन्होंने वीडियो भी चलाई, उस वीडियो में कुछ किरदार थे, उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जैसा कि मुल्क के वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तारीख पेश की गई है और ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि हस्बे रिवायत अरकान कौमी असेंबली को हब्स बेजा में रखा जाएगा, तो उस हवाले से अगर हुकूमत ने इस तरह की कोई घनौ साजिश की और किसी भी रुकन असेंबली को अगवा करने की कोशिश की गई तो अंसार इस्लाम के दस्ते इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे और उनको सिक्योरिटी फराहम करेंगे। और मरकजी नायब सालार मोहतरम अब्दुल्ला खिलजी की क़यादत में एक हमारा डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंच चुका है। बाकी भी तमाम चारों सूबाई सालारों और मरकजी नायब सालारों से हमारा मुकम्मल राब्ता है और इंशाअल्लाह ताला हम मुकम्मल तरह से अपने कौमी असेंबली के अरकान को और कौमी क़यादत को सिक्योरिटी फराहम करेंगे और हुकूमत की किसी भी इस तरह की घनाऊ साजिश को हम कामयाब होने नहीं देंगे। तो आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी जिसमें कहा जा रहा है कि किस तरीके से जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से तैयारी की जा रही हैं और क्या कुछ तहफ़्फ़ुज़ात इसका भी इजहार किया गया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये सूरत हाल जिस अंदाज में हुई, फिलहाल मालूम ये होता है, गुमान यह है कि इस सूरत हाल में फिलहाल जो शिद्दत थी वो उस पर काबू पा लिया गया। लेकिन ये सूरत हाल मजीद इस तरीके से डेवलप हो सकती है। आने वाले 10 से 12 रोज पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए बहुत ही अहम होने जा रहे हैं। और जब तक ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला तय नहीं हो जाता, जब तक ये सूरत हाल क्लियर नहीं हो जाती कि ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है, तब तक ये सारे मामलात उस अंदाज से तय नहीं होंगे और मुल्क में अमन व अमान बरकरार रहे, ये मुश्किल ही नजर आता है। दूसरी जानिब हमने प्रोग्राम की इब्तिदा में भी बताया कि पाकिस्तान की जो सरहदी हुदूद है इसके ऊपर एक वार किया गया हिंदुस्तान की जानिब से। एक नाकाम सी कोशिश थी, एक दीवाने का ख्वाब था, जिसमें शायद ये कोशिश की गई कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को टेस्ट किया जाए, चेक किया जाए कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम कितना मजबूत और मजबूत है। तो ये निजाम को चेक करने वालों को भी करारा जवाब दिया गया पाकिस्तान की पाक फौज और पाकिस्तान की पूरी मिलिट्री फोर्सेस की जानिब से कि पाकिस्तान अपने दिफा को हर सूरत यकीनी बनाएगा। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।